हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बोल्ड स्पीक इंडिया एवरीवन। जय हिंद। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे जो भी कर रहे हैं। एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो है इट इज़ ऑन पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे तो हम लोग बात कर ही चुके थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप। अब देखिए, एसएसबी में जब आप जाते हैं, जीडी जो होता है आपका वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद में आप जिस तरीके से अपने पूरे जीटीओ टास्क में आप जिस तरीके से लीड करते हैं अपने ग्रुप को, आप जिस तरीके से कंक्लूजन करते हैं अपने पीपीडीटी में, जीडीज में यूजुअली, तो वो सब चीज़ें, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर व्हाट कैटेगरी? इट इज़ वन ऑफ द OLQs ऑफ द एसएसबी एंड दिस इज कॉल्ड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, राइट। सो आज ये शुरू करने से पहले, बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू समथिंग। एक छोटी सी मैं ट्रिक यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखी है और वो मैं आपको ट्रिक यहाँ बताना चाहती हूँ। ये ट्रिक है कि, और ये मैंने किसी वीडियो से ही देखा था, आई थिंक मुझे उनका सर का नाम याद नहीं आ रहा है अभी। सो उन्होंने कहा था, ही इज़ अ Japanese mentor, I think. So he had, obviously he had something really important to talk about, the ability to influence, right? And mostly I've heard people saying that the influencing is related to manipulation, but then no, I was very very wrong. So what happens is that this person that I'm speaking of, so once I remember his name, I will definitely tell you, or maybe it'll get mentioned somewhere here in the video. But then the advice was that one should always watch their thoughts as they become your words. So one should always watch their words as they become your action, and one should always watch their action as they become your behavior. One should always watch their behavior as that becomes your habits, and one should always watch their habits as they become your character. And lastly, watch your character as it becomes your destiny. So my friends, whatever you say, however you utter, जो भी आप खुद से बोलते हैं, जो भी आप सामने वाले से बोलते हैं, that ultimately becomes your destiny. ठीक है, थोड़ा सा हम पॉज लेंगे इस बात को बोलने के बाद में, लेट इट गेट सेटल्ड इन योर ब्रेन, राइट। सब समझ रहे हैं कि क्यों इतना ज़्यादा नेसेसरी है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। क्यों, वाई इज इट नेसेसरी? ठीक है, हम दुनिया में, हम हैं अभी तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, आप भी बहुत कुछ बोलते हैं। कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंस में उस बात को बोलते हैं, कुछ लोग बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस में उस चीज़ को बोलते हैं, बट हर किसी को बोलना आता है। देयर इज़ नो वन जो अपनी बातों को व्यक्त न कर पाए, बट जो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, आप समझ लीजिए कि आप अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं या बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू make an impact on your destiny. I hope I'm making some sense to you guys, right? Now let's focus on what actually happens, what is power of expression, because I am into communication and I understand communication so much, so that I believe that I can definitely tell people who are preparing for SSB that power of expression is not just the way you convey your ideas. It is not just how concisely thoughts, but it is more than that. It is more than how clearly you speak. What potential do you hold? So I'm sorry, I'm looking away from the camera again and again. I'm not doing it on purpose, but because I have my notes here, so it is very necessary for me to like look into them, so that whatever, obviously I can do it like without looking at it, but then just to be specific, because this video is going to be very very important. आप लोगों को बहुत ज़्यादा the ability to how well can you influence a group, the ability to influence a group, उसके बारे में आज हम काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो चीज़ है, जो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि इन SSB इट इज़ नेसेसरी, जो आप कैंडिडेट हैं वो क्या चीज़ दिखा रहे हैं वहाँ पे, हाउ वेल कैन यू लीड अ ग्रुप, राइट, एंड ऑल्सो हाउ मच कैन यू इंस्पायर पीपल, इंस्पायर एंड मेक एन इम्पैक्ट ऑन द assessors. ठीक है, these are the
only three things which are necessary. What are these three things? One, what is the impact that you create on the assessors? How well do you lead your group? And lastly, how do you inspire them? I feel that जब भी हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं या हम किसी भी इंसान से बातें करते हैं, लेट इट बी योर स्टूडेंट, लेट इट बी योर पेरेंट्स, लेट इट बी योर फ्रेंड्स, वन शुड ऑलवेज ट्राई एंड इंस्पायर. अगर आपने जब उससे बात करी और उसको उसके जहन में एक भी बात अगर आपकी याद रह जाती है, तो या फिर आपको अगर किसी की कभी कोई ऐसी कही हुई बात याद है, तो आप समझिए और वो बात अच्छी है, वो पॉजिटिव बात है, देन the person has inspired you. That person has made an impact on the way you think, the way you style your words, the way you style your thoughts. ठीक है, बिकॉज हम जिस तरीके से बातें करते हैं वो एक्चुअली हमारे थॉट्स में जाकर के लगती है. ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया था कि थॉट से डेस्टिनी तक, वर्ड्स देन थॉट्स, फिर वहाँ से कैरेक्टर, वहाँ से बिहेवियर, हैबिट्स एंड देन डेस्टिनी. इट इज़ ऑल वन सिंगल जर्नी, राइट. ठीक है, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द सॉलिड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, एंड व्हाट हैपन्स इज दैट हमारी जो इनर पर्सनालिटी होती है, बाहर से तो देखिए आप अपना जो ये बाहरी आडंबर होता है जैसे हम कहते हैं, आप वहाँ पे कपड़े पहन करके यू कैन मे बी ग्रूम योर सेल्फ वेल, मे बी यू कैन डू समथिंग विद द वे यू लुक, बट देन इनर पर्सनालिटी इज समथिंग विच इज एट द कोर. दैट इज समथिंग विच कैनॉट बी groomed. I mean, obviously you can work on it and then maybe the word groom would work there. But then, simply speaking, it is very tough for you to cover your inner personality, cover who you really are. So, जो आप बोलते हैं, मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ, the way you speak, it actually impacts on the way how people will perceive you, on the way how people will think about you. राइट. सो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझनी. अब देखिए, SSB में तीनों स्टेजेस में, लेट इट बी द स्क्रीनिंग टेस्ट, लेट इट बी द कॉन्फ्रेंस, लेट इट बी योर GTO टास्क, हर जगह पर वेर एवर देर आर पीपल and wherever there is a group, you are definitely influencing them. Your communication skills are getting getting under test. तो वो सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यूस प्रोसीजर में चलती रहती हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट पे, यानी कि हमारा जो पहला दिन होता है स्क्रीनिंग के बाद में, दैट इज़ योर टैट एंड SRT. ठीक है, तो द पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है, जिसके ऊपर एक वीडियो आ चुकी है पहले से ही, मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगी, आप प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को देखना, और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी अबाउट पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी. ठीक है, सबसे पहले तो जो नेसेसरी चीज़ है, इट इज़ टू ऑलवेज पेन डाउन योर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. हम देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि थॉट्स आते हैं और वी जस्ट लेट देम गो अवे फ्रॉम द माइंड, बट नहीं, that is not what you're supposed to do. Once you've started to prepare for the SSB, आप अपने आप को और बेहतर जानने लगते हैं जब आप SSB के लिए अपने आप को तैयार करते हैं. ठीक है, तो आपको one should always be constructive, one should always be realistic towards their thoughts, and one should always do it under strict timeline. यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ टैट और SRT की, ध्यान दीजिए, बैट की, टैट की, SRT की. ठीक है, now next is your SDT, which is your self description test. अब self description test क्या बोलता है? देखिए, assessors क्यों यूज़ करते हैं SDT का? उसका पर्पस ही क्या है SSB में? उसको यूज़ किया जाता है to evaluate how self aware you are, how well do you understand yourself. आप कितना खुद को समझते हैं, कितना अच्छे से समझते हैं. ठीक है, तो आपको क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है? यू नीड टू प्रैक्टिस राइटिंग ऑनेस्ट पैराग्राफ्स अबाउट योर सेल्फ. यू नीड टू राइट हाउ योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स व्यू यू. किस तरीके से वहाँ पर आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ें लिखनी होती है. ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने घर पर. ठीक है, अलॉन्ग विद योर ओन सेल्फ असेसमेंट. आप खुद क्या सोचते हैं, फिर आपके जो दोस्त हैं, आपके घर परिवार वाले, वो क्या सोचते हैं. सो ये सारी बातें, ये क्या रिवील करता है? इट रिवील्स हाउ जेन्युइन यू आर, हाउ जेन्युइनली कैन यू लुक इन टू योर सेल्फ, हाउ जेन्युइनली डू यू नो योर कैरेक्टर. इट इज़ ऑल अ कैरेक्टर थिंग. Right now, if I say that I'm a very unkind person, I'm not as kind as people see me. So जैसे मैंने बोला
मे बी यू विल बाय इनटू इट, मे बी यू विल बाय दिस थॉट, बट देन आई नो, राइट, मुझे तो अपनी सच्चाई मालूम है। या अगर कोई मेरे बारे में बहुत कोई अच्छा बोले और वो चीज़ शायद मैं ना उतने अच्छे से कर पाती हूँ, तो मुझे अपने बारे में पता है। सो यू नीड टू राइट व्हाट, जस्ट जेन्युइन थॉट्स, व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन एक्शन। नाउ मैं हमेशा बोलती हूँ, और मेरी जो एक वीडियो है, जितनी भी वीडियोस हैं मेरी आप देखेंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर दिखा रही होती है, एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। तो आपको भी वही करना है। rather than just using adjectives like hard works or honest, express these traits through concrete रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एंड बिहेवियर्स। कहीं पर समवेयर जहाँ पर आपने अपनी लाइफ में किसी को जहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ी हो आपके कैरेक्टर को दिखाने की, आपने वहाँ पर यू यूज इट एज द बेस्ट वे पॉसिबल, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के एग्जाम्पल्स को लेना है, आपको अपनी लाइफ से ही एग्जाम्पल्स को उठाना है, आई एम सॉरी फॉर द माइक, और उसके बारे में आपको देन डिस्कस करना है। आई थिंक आई जस्ट होल्ड इट। नाउ व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं, ठीक है। कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए ऑन राइटिंग ऑथेंटिक और मे बी जो आपको इम्पैक्टफुल सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो हम कहते हैं उसके बारे में। देखिए, जब आप ग्रुप डिस्कशन में होते हैं, जब आप जीटीओ के सामने बैठे हुए होते हैं और जीटीओ टास्क चल रहे हैं फॉर एग्जांपल जब आपके, ठीक है, तो आई थिंक जो ये लिंक है प्रैक्टिकली किस तरीके से आपको अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भरना चाहिए, वो लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी और वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, इट इज़ देयर ऑन द यूट्यूब। बट क्योंकि ये जो पूरी की पूरी वीडियो है, ये सेगमेंट आज वाला हमारा पूरा इट इज़ अबाउट हाउ टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप है, तो हम उस चीज़ को जाने देंगे, ठीक है। सो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको किस तरीके से देखता है टास्क के दौरान, तो वो क्या चाहता है कि क्लैरिटी ओवर वॉल्यूम। आप ये ना करें कि आप जाकर के अपने जो आपके टीममेट्स हैं उनको चिल्ला करके बोले यू डू दिस, यू डू दैट, यू आर द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तेरी गलती है। नो, don't do it. Instead, officers focus on clear communication rather than speaking the fastest. किसी को ये बताने से पहले कि भाई तू ऐसे कर, भाई तू ऐसे कर, बहन तुम ऐसे करो, no. Always try to make a well structured argument, ठीक है, and always do not try to outshine the chaos में आप फंसे हुए हैं, तो always try to be in it. थोड़ा जी के तो देखिए and then find a सोल्यूशन, ठीक है। तो लाउडर नहीं होना है, शाउटिंग नहीं करनी है आपको वहां पर, यू जस्ट नीड टू पुट योर क्लैरिटी ओवर योर वॉल्यूम, ठीक है। तो आप लेक्चरेट में जाएं तो भी दिस इज द सेम थिंग, हाउ यू गोइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप जीडी में जाएं तब भी दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एक्सप्रेस। आई नो इट बिकम्स अ फिश मार्केट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट प्लीज अंडरस्टैंड द मोर असर्टिव यू आर, इट इज जस्ट दैट आई प्रॉमिस, if on that one day you realize that this is the only day जहाँ पर मुझको खाली लोगों की सुन करके थोड़ा सा चलना है और अपनी बात भी रखनी है, बट लोगों की थोड़ा सा समझदारी से अगर आप यहाँ से काम ले, then my friend you will definitely get through SSB। थोड़ा सा आपको संयम, जिसको पेशेंस you need to keep। नेक्स्ट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब देखिए, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू डेमोन्स्ट्रेट। आई अंडरस्टैंड कि मैम आप बोल रहे हो शांति से रहो, बट हम डेमोन्स्ट्रेट कैसे करें, हम बताएं कैसे कि हमें क्या आता है। सो देखिए, रिस्पेक्ट करके अपने टीम मेंबर्स की, वेन एवर दे, अगर आपको कोई कट ऑफ कर रहा है, आप बोल रहे हैं, अगर कोई आपको रोक दे बोलते बोलते, तो आप बोले कि उसको कंप्लीट करने दीजिए। आप उसको बोलिए कि थैंक यू सो मच, बट आई वाज सेइंग समथिंग, आई नीड टू कंप्लीट माई आर्ग्यूमेंट, आई नीड टू कंप्लीट माई स्टेटमेंट एंड देन मे बी आई विल आर्ग्यू विद यू, ठीक है। सो यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल बिकॉज देर आर पीपल हु विल कम इन एंड डू इट ऑन पर्पस। वो आपको जानबूझ करके परेशान करना चाहेंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। नाउ ऑलवेज ट्राई टू समराइज, आप इफेक्टिवली समराइज करिए डिस्कशंस को और प्रेजेंट करिए एक्शनेबल प्लान्स के साथ में, अच्छी तरीके से उनको एक प्रेजेंट अपने दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आपके थॉट्स ओरिजिनल होते हैं, जब आपके थॉट्स आपके अपने, जब आपने उनके बारे में विचार कर लिया होता है, पढ़ने के बाद में आपने कुछ चीज़ पढ़ी, उसके बाद में यू केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट, इट बिकम, वो आपकी लूप में था, आपकी थिंकिंग पैटर्न की लूप में था, तो यू विल ऑल्सो मे बी you might as well have a very clear idea of what you're seeing, of what you're speaking about, ठीक है। थर्ड इज योर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में देखिए, मेरा गला ना थोड़ा ख़राब है,
बट वही है कि बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ एंड ऑल्सो टू माई स्टूडेंट्स दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट दीज वीडियोज़, तो बस वो एक मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, बिकॉज फॉर माई स्टूडेंट्स एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल, नहीं करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या असेस करता है, ठीक है। जब आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं तो आपके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में होने चाहिए, एक बहुत स्पष्टता से आप उसके बारे में बात करिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस करने के लिए देखिए, मैं अगर आपको बताने पे आऊँ ना, तो इन्फ्लुएंस करने के लिए एक्चुअली आपको सामने वाले में आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। बट एसएसबी ऐसी एक जगह है जहाँ पर इट इज़ ऑल अबाउट यू एंड बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द ग्रुप दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग विद। सो आप अपने सामने वाले को ना समझा पाएँ कि आपका जो आप पॉइंट जो रख रहे हैं वो ज़रूरी क्यों है, वो ठीक क्यों है, ज़रूरी से ज़्यादा। ये ज़रूरी तो क्योंकि उसका पॉइंट भी होगा, बट आपका ही पॉइंट अच्छा क्यों है, मे बी यू विल हैव सम लॉजिकल रीजनिंग टू इट, राइट। सो इस तरीके से आपको उससे बात करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी फ्रेंड है या आपके जो टीम लीड हो जाएं या आप अगर खुद बन जाएं तो, ठीक है। नाउ अब कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, मेंटल प्रेजेंस जिसको हम बोलते हैं, कि आपको वहीं उस क्षण में होना ज़रूरी है। आप जहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जिन ग्रुप्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका वहाँ पर दिमागी रूप से मतलब दिमागी रूप से आपका वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप यहाँ पे हम बात चल रही है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप कहीं और हैं, वीडियो देखते देखते आप शायद एसएसबी के आप उस हॉल में है मेंटली, सो व्हाट इम्पैक्ट इज दिस वीडियो मेकिंग ऑन यू, मे बी नल, बहुत ज़्यादा कुछ तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना। तो आपको इधर रहना। नॉन वर्बल क्यूज़ के बारे में यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि जब हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ग्रुप को, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 50-60% ऑफ योर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। देखिए, if I am holding this mic, the way I hold it, the way I'm speaking with you, अभी तो I'm getting comfortable with you guys, ठीक है। So the way I sit, the way I am using my hands, again power of expression वाली वीडियो में there are a lot of things on non-verbal cues, तो आप प्लीज जाके उसे देखिए। How well eye contact am I maintaining with you, what is my body posture right now, am I a bit scrouch, मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे होके बैठी हूँ, या फिर मैं थोड़ा आई एम सिटिंग कॉन्फिडेंटली, या फिर मैं उस तरीके से बैठी हूँ जिस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को यूजुअली पढ़ाती हूँ। सो वो सारी बातें जो हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, आपको अंडर प्रेशर कंपोज करने में बहुत मदद करती है। अगर आप शांत हैं, अगर आपका दिमाग शांत है, तो यहाँ भी दिखाई देता है, इट इज़ ऑल विजिबल ऑल ओवर यू, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट मेजर्ड पेस, आई ऑलवेज स्पीक अबाउट इट। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में इस चीज़ को डालती हूँ कि आपको कम से भी कम कोशिश करनी है कि रैपिड फायर क्वेश्चंस की जब बात आए, या फिर जब आपसे पूछा जाए कुछ चीज़ अबाउट हाउ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, एंड देन यू जस्ट टा सीधा, मतलब एकदम से स्टेडियम के बाहर बॉल, नो, धीरे से आपको थोड़ा सा समझनी है चीज़ों को, आपको एक लॉजिकल फ्लो बनाना है, इंश्योर करना है दैट यू हैव अ लॉजिकल फ्लो टू वट एवर यू से, यू हैव प्रॉपर रीजनिंग टू इट। अब देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैम आप अपने इनडिसिप्लिन की कोई क्या आप एक कहानी बता सकते हैं जब आप स्कूल में थी या जब आप कॉलेज में थी, और मैं अगर ये बोलूँ, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि जब मैं कॉलेज में थी, सवाल देखिए ये है कि मुझे आई नीड टू टेल यू गाइज दैट आई नीड टू टेल द जीटी और मे बी, ये देखिए बाकी सब चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप खुद को समझ गए तो दुनियादारी एक तरफ और आप एक तरफ, आपके दिमाग में वो स्पष्टता होनी चाहिए विचारों की खुद को लेकर के, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ टू बिल्ड इट। अब किस तरीके से हम जो हैं ये प्रैक्टिस कर सके द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन, हम किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। तो देखिए, जो बेस्ट तरीके जो बताए जाते हैं, सवाल ये है कि व्हाट वाज वन इनडिसिप्लिन थिंग दैट आई हैव डन। तो मे बी मैं अभी तक वैसे मैंने आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस, बट हाइपोथेटिकली मैंने किसी प्रोफेसर की कार का जो है टायर पंचर कर रखा है, अगर मैं ये बोल दूँ, सो इट शोज व्हाट, इट शोज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स समवन बीइंग, मतलब जो आपसे ऊपर के पद के लोग हैं, आप उनको यू शोइंग डिसरिस्पेक्ट, ये करके उनको परेशान करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। सो ये नहीं चल सकता, फिर आप लूप में फंस जाएंगे, जीटीओ सर आपको पकड़ लेंगे, आप वहाँ से
और फंसते चले जाएंगे। तो यू नीड टू आंसर इन अ वे जो कि लॉजिकल हो, रैपिड फायर क्वेश्चंस को आप ठीक से समझ पाएँ, आपके जो थॉट्स होने चाहिए एक स्ट्रक्चर में होने चाहिए। अगेन वन शुड बी वेरी वेरी सेल्फ अवेयर, अपने बारे में पता रख। नाउ हाउ टू कल्टिवेट दिस एबिलिटी, देखिए इसके बारे में ना बहुत कम यूट्यूबर्स बात करते हैं, बहुत कम मेंटर्स इस बारे में बात करते हैं। ना फर्स्टली यू नीड टू शार्पन योर एक्सप्रेशन, यू नीड टू ऑल्सो ऑलवेज थिंक अबाउट इट